Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about the preposition. Today our topic is most technical and most important. It is not difficult but it considered to be difficult because there are some tricks to use and apply the prepositions. Clearly today our topic is preposition. Clear? So we should use to learn about these functions and the usage and about its kind. First, firstly, we will discuss preposition. Prepositions, firstly, is the part of speech. Clear and part of speech. Preposition means preposition. Preposition is the combination of two words like pre and position. Preposition in itself has the word position. So its first function is to tell us about the position. Clear? It tells us about the positions of noun and pronoun. So अगर हम इसकी definition की बात करते हैं तो preposition is such type of words, short words, little words that tells us about the noun and pronoun and the position of noun and pronoun especially. And secondly, it's create and establish and create the link and relationship between the noun and pronoun. Short words mostly we can see that prepositions are used in front of the noun. Noun से पहले जो use होते हैं वो preposition use होता है जो किसको dignify और signify कर रहे होते हैं about the position of noun and pronoun. So there are different types and there are different functions and usage of the preposition. Clear? Prepositions basically works and tells us about the position of place, manner, source, instrument, like possession, all such type of things. We will get information through the preposition, and these and preposition under these headings signify and enhance the meaning of and tells us about more information about the noun and pronoun. So let's start and one by one all the types and of the types and kinds of the preposition. The first one is preposition of time. Firstly, in this heading, we can see that such type of preposition that indicates the time, like what happens, what will be happen and what happened. क्या हो चुका है, क्या हो रहा है and क्या होगा आगे. जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो हमें टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसी भी टाइप की हो सकती है. दीज preposition विल बी कॉल्ड preposition of time. और इसमें कौन कौन से preposition आ जाते हैं, लेट्स वी विल डिस्कस. द फर्स्ट वन इज एट. एट हम कब यूज करते हैं, लाइक 4 PM 3 PM. जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का वर्ड यूज करने के लिए. एट होम, प्लेस की बात हो रही है तब भी हम एट का यूज करेंगे. अब सेकंड आ जाती है ऑन. जब भी टाइम की बात आ जाएगी तब हम क्यों यूज करेंगे, एट यूज करेंगे. सेकंड जब हम ऑन किसी भी मंथ का नेम आ जाएगा, किसी भी मंथ का नेम, लाइक ही गेट्स अप अर्ली एट 4 PM, वो 4 बजे उठता है. ऑन, ही बोर्न ऑन 14 अगस्त, वो 14 अगस्त को पैदा हुआ. अब यहाँ पे अगस्त की बात आ गई, अगस्त से पहले हमने क्या यूज किया है, ऑन. क्लियर? जो मंथ्स के पहले कितने भी मंथ्स हैं उनके नाम से पहले हमने क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है. और टाइम से पहले वी विल यूज एट. द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग ऑल्सो शोज टाइम, लाइक ही इज we are going to लाहौर ड्यूरिंग द हॉलीडेज. हम हॉलीडेज में जाएंगे उसके दौरान. तो ड्यूरिंग भी किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है. आफ्टर द समर वेकेशन वी विल बैक टू स्कूल. before going to school we will go to picnic and we will go to bakery, some like this. The before, after, during, all these preposition shows the time. Clear? The next one is preposition of place. अब preposition of place में क्या आ जाता है, such type of preposition that indicates the place. वो place कोई भी हो सकती है. आप देखें, on, at, in, inside, under, over, near, between. अब these prepositions shows us time. How these shows place, like on. The cat is sitting on the table. Clear? ऑन की बात आ रही, कैट किस में बैठी हुई है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठी हुई है. हमें किसकी पोजीशन शो हो रही है, कैट की पोजीशन शो हो रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एट. इससे पहले हमने टाइम में भी एट यूज किया है. क्लियर? इन हमने यूज किया है. ये जो 2-3 इन, ऑन, एट, ये जो 3 प्रेपोजिशंस हैं ये प्लेस ऑफ मैनर में भी आती हैं. क्लियर?
ये हमें preposition of place में भी आती है और preposition of time में भी आती है. ये time और place दोनों को show करती हैं. Remember thing, on, at, in, ये जो 3 preposition है ये time को भी show करती हैं and place को भी show करती हैं. Like he is at home, he is at station. तो ये जो आगे place आ रही है तो इसके लिए भी हम at का word use करते हैं. इससे भी पहले preposition use करते हैं at की. In the cups are placing in the kitchen. कप कहाँ पे है? किचन में है. वो हमें किचन भी क्या है एक्चुअली, वो हमें कप बताने, कप की प्लेस बताने. वेयर कप आर स्टैंडिंग एंड पोजिशन्ड इनसाइड. ही इज इनसाइड द वेल. वो कुएं के अंदर है. अंडर. ही इज या शी इज सिटिंग अंडर द ट्री या बीनीथ द ट्री. शी इज सिटिंग अंडर द टेबल. वो टेबल के नीचे बैठी हुई है. बीनीथ भी इसमें आ सकता है. बीनीथ किसकी हमें वो बताएगा. बीनीथ द ट्री, वो ट्री के नीचे बैठी हुई है. ओवर, गेम इज ओवर. He is going over there. Near, she is near to me. Between, हम 2 वर्ड्स की कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, 2 के दरमियान यूज करते हैं. क्लियर. अब ये जो तमाम चीजें ये हमें किसके बारे में बतानी है. प्लेस के बारे में. प्लेस एंड पोजीशन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन. द नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ऑफ मैनर. अब मैनर में क्या आ जाएगा, चीज को किस तरह से रखा गया, उसकी क्या समथिंग और उसकी ओरिजिनेशन में भी आ जाएगा इसमें, और किस तरह से हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उसमें उसके अंदाज भी आ जाएगा, उसकी कैफियत भी आ जाएगी. इस तरह की जो चीजें हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, कि हमने चीज कहाँ से ली है और कैसे ली है, इस चीज में आ जाएगा. ही इज सिटिंग नियर बाय मी. इन फिर इसमें आ गया. इन वी कैन से दैट लाइक, विद, he goes with her. क्लियर. इस तरह के जो चीजें हैं इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं. by, in, like, with, on. इस तरह he is sitting by me, he goes to Lahore by with her. इस तरह की जो चीजें ये मैनर्स को शो कर रही हैं. the next one is compound preposition. अब compound क्या है. compound basically is a combination of 2 words. compound combination of 2 words. अब 2 words क्यों. एक जो वर्ड्स है like in, ऑफ. अब हम इनके साथ कोई और वर्ड यूज करते हैं. लाइक इन इज अ वर्ड. क्लियर. इन इज अ वर्ड, विद इज अ वर्ड. अब हम दोनों को एक मिला के कर दिया विद इन. विद इन मीन्स विद इन उसके अंदर या उसके साथ. अब क्या हो गया. विद इन एक प्रेपोजिशन बन गई. इट्स मीन इट इज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन. बी नीथ, बी साइड. क्लियर. इन टू, ऑन टू, इन साइड. Clear. These words are called preposition, compound preposition. Clear. The next one is prepositions of movement. We can see the word movement. It shows the movement and origination and tells us about the journey and destination. Direction show कर रहा है, उस हमारी destination को show कर रहा है. Where we are, someone and something is going to be. अब वो कहाँ पे वो जाएगी, उसकी movement को show करेगा. सबसे जो इसमें important है वो क्या है. to. अब to क्या है. we will use like go to school, go to college. Preposition of movement tells us about the direction and position. Clear. Destination. To, past, around, into, up, through, down, across. If we will use these preposition into sentences, he goes to college. We go into the he goes into the water. He goes up. He goes down. Past, around the world, through the fields, come across the ground. तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं उनको हम अब यूज करेंगे शोज करने के लिए. डेस्टिनेशन और अपनी मूवमेंट को शो करते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज फ्रेज प्रेपोजिशन. अब फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होते हैं. कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स जिसमें हम उसमें ऐसी प्रेपोजिशंस जिनको हम यूज करते हैं किसी 2 चीजें में कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए. हम फ्रेज, हम जो सिंपल हमारे जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान हम प्रेपोजिशन उनके आगे शो करते हैं, उनको यूज करते हैं प्रेपोजिशंस को उनके मीनिंग को इनहेंस करने के लिए, उनके मीनिंग को सिग्निफाई करने के लिए. अब क्या है. बिकॉज ऑफ. क्लियर. along with, he goes to park along with his wife. In front of, he lives in front of a college. He can't come to school on account of his and her illness. So such type of words are called phrase preposition.
The next one is prepositions of possession. अब possessions का जो word है ये अपने अंदर एक और मीनिंग ली गई है. Possessions मलकियत को शो कर रहा है, that someone and something he belongs to his and her. ये उसकी चीज है. अब क्या है इसमें जो prepositions होती हैं of, with, to. क्लियर? अब of, ई या का, with के साथ टू भी उसको सिग्निफाई कर रहा है. अब इसकी सम एग्जाम्पल्स हैं. I got some money and some maybe land of my late father. अब उसने क्या है कि उसको कुछ भी मनी मिली है या कुछ भी जायदाद उसको मिली है, वो किसकी तरफ से मिली है? He got this of my late father. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का मलिकियत क्या है कि वो उसकी फादर की थी, बट नाउ he belongs of that, लेकिन अब वो इसकी हो गई of my late father. Next one is I go to the park and I met a man with the dark skin. अब ये क्या है? with यहाँ पे हमने यूज किया है डार्क स्किन के साथ. अब मैंने जिस लड़के को देखा था उसकी क्या डार्क स्किन. इट्स मीन डार्क स्किन इज द पोजेशन ऑफ डेड बॉय. क्लियर? कि वो उसकी मलकियत थी कि उसकी स्किन डार्क है, इसके लिए हमने यहाँ पे विद का यूज किया है. द नेक्स्ट वन इज ऑफ माई क्लासमेट. I got this pride of my classmate. To my mother. I belong to my mother. कि मैं अपनी माँ से ताल्लुक रखती हूँ. तो ये भी मलकियत की शो कर है ना कि मैं माँ और बेटी का जो रिलेशनशिप है और पोजेशन है उनकी उसको शो कर रखती. क्लियर? Here to, with, of. The next one is last one is prepositions of source. अब source mean we get maybe information and something else from the other resources. It may be living and knowing. अब किसी भी रिसोर्स से जो हम चीजों को हासिल करते हैं, उनको गेट करते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो prepositions यूज करते हैं उनको कहते हैं हम sources. हम इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज करते हैं वो हमें किसी न किसी तो रिसोर्स से मिल रही होती है. उसके लिए जो भी उसका वो सोर्स या वसीला या उसको क्या हम उसके लिए preposition यूज होती हैं फ्रॉम एंड बाय. अब इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंड बाय. अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? द फर्स्ट वन इज दिस नोट वॉज नॉट रिटन. अब यहाँ पे फ्रॉम या माइन क्या आएगा? दिस नोट वॉज नॉट रिटन बाय मी. ये जो नोट है ये मैंने नहीं लिखा. या दिस नोट वॉज नॉट रिटन बाय माई सिस्टर. ये मेरी सिस्टर से नहीं लिखा. द नेक्स्ट वन इज ही गेव्स चैरिटी. यहाँ पे हम बाय ग्रेटफुल हार्ट नहीं यूज कर सकते. दिस मैन गेव्स चैरिटी फ्रॉम ग्रेटफुल हार्ट. कि उसने अच्छे दिल से अपने सखी वाले दिल के साथ उसने वो क्या किया है? चैरिटी को डोनेट किया है. अब सच टाइप ऑफ वर्ड्स जो है वो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं फ्रॉम एंड बाय. क्लियर? कि हमें पता चला है कि उसको किससे वो रिसोर्स हुआ है, एक अच्छे दिल वाले इंसान से उसको चैरिटी वसूल हुई है. और ये जो लिखा गया है ये किसी और से वसूल हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है. दीज आर द काइंड्स ऑफ preposition. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. देखिए पेन पे क्या बोल